overcoming excuses and objection handling by ICICI Prudential AMC. So today we have with us Mr. Chirag Patel, AVP of Product Development and Strategy. He has a 12 years of experience in product and design. He is responsible for product development and communications in mutual fund and alternate investment products. He is responsible for conceiving products like ICICI Prudential Alice Asset Allocator and ICICI Prudential Freedom Safe. He is working with investment team to make a strategies depending upon internal view and on capital markets. He is breaking a complex investment strategy into simple, effective communication. He has done more than 2,000 presentations and calls across the country on various subjects. So it's really great to have you with us, Chirag sir, and over to you now. Okay, am I audible? Hello? Yes, sir, you are audible. So, and my slides are visible or not? Yes, sir, it is visible. Fine, thanks. So, welcome all of you. I think it is a newer subject for me also. So, I think we handle objection every day and we deal with excuses every day. But it is an integral part of our business or any salesperson, right? Because if the objections, if you can't interpret the accuse well, or you can't handle the objection well, it is very harmful for our business. The reason is objection can a poorly handled objection can result into conflict, and when there is a conflict, if you win the conflict, you will lose the customer, and if you lose the conflict, you will lose the business. So both side you are into trouble. So objection handling is an integral part of our business. So we should know the basic rule of objection handling. So my presentation just tells what do's and what don'ts, and what are the 15-16 point there where we should pay an extra attention while dealing with this kind of objection. Now, this objection handling can be in any field, not in investment field. It can be, it is valid for any other field also, because generally any sales thing require this kind of objection handling, right? So, पहले तो definition की बात करते हैं. So, what is an objection? An expression or feeling of disapproval or opposition or a reason for disagreement, right? So, this is called an objection. So, where you have some concern, where you are having some conflicting or opposing facts, and where you are having some valid reason for disagreeing to what you are saying, right? So that is what is the objection. Someone just think that the voice is not audible if it is to everyone or it is to some particular case. I just want confirmation from anyone of you. Any one of you can put a message. It is so. It's audible. So those who can't listen properly, please, I think the best way to get a proper reception is disconnect yourself once and then reconnect, or be it a place where it is the reception of the internet is smooth and fine, right? And what is an excuse? Excuse मतलब बहाने, ठीक है? तो बहाना क्या होता है? A reason for explanation given to justify a fault or offense or showing an inability to do something. So let's go with some examples. So if I have to differentiate between objection and excuse, objection और excuse में क्या फर्क होता है? Objection is a sincere concern on the part of customer. Customer का एक sincere concern होता है, ठीक है? या तो उसके कुछ doubts होते हैं, which are very valid, because he may not aware of some facts. He may not aware of the product that you are discussing, or the product or the investment area which is for which he is very new. So these are called objections. What is an excuse? Is an insincere reason given by customer to cover up a valid concern. Valid concern कुछ होता है मगर उसको वो दिखाना नहीं है, right? और कुछ और बात बताता है. That is called excuse, right? So excuse is just a subset of objection where customer want to hide a valid reason, and if you don't know the valid reason, you can't overcome it, right? So that is what is excuse. तो पहले तो customer जो भी बात करे ये objection है या excuse है.
वो पता करना बहुत जरूरी। इफ इट इज एन एक्सक्यूज यू कांट डू एनीथिंग, राइट, बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन। जैसे कि आई कांट वेयर दिस ड्रेस एट वर्क प्लेस, राइट, ऐसा बोल देते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड अ रियल ऑब्जेक्शन, हाँ भाई ये कपड़े में ऑफिस में नहीं पहन सकता या पहन सकती, राइट। कस्टमर एक्सक्यूज क्या था, कस्टमर बोलता है ये प्रोडक्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये होता है प्रोडक्ट बड़ा एक्सपेंसिव है, मगर व्हाट ही इज टेलिंग दिस प्रोडक्ट लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इन आर फील्ड, इन इन्वेस्टमेंट फील्ड, इन्वेस्टर है ना बहुत सारे बहाने बनाते हैं, ये प्रोडक्ट में ना मजा नहीं आ रहा। नाउ व्हाट इज दिस मजा, राइट। इन्वेस्टमेंट इज नॉट समथिंग टू हैव फन विथ, राइट, वो मजे की चीज ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट शुड बी बोरिंग, राइट। इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा बनाना है। इट इज इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट एक्साइटमेंट, तो मजा नहीं आ रहा ऐसी बात बताता है। ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इससे तो वो वाला बेटर है, तो तुम्हारा कंपनी बेकार है। एक्चुअली जब ये सारी चीजें बहुत सारे वर्जन आते तो समझ लेना ये एक्सक्यूज है, राइट। तो जनरली क्लाइंट के पास पैसा नहीं होता, ठीक है, आई डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट, दैट टाइम ही गिव एनी रीजन, क्योंकि उसको ये बताना नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बिकॉज पैसा नहीं है ये बताना किसी को अच्छा नहीं लगता, राइट। तो वो बहाने बहुत सारे बनाता है, एंड व्हेन इट इज एक्सक्यूज इट इज नॉट कंसिस्टेंट, वो बदलता जाता है, और आप एक को सॉल्व करते दूसरा आता है, दूसरे को सॉल्व करते तीसरा आता है। इन दैट केस यू हैव टू डू अ कंसल्टेटिव सेलिंग। Consultative selling में ask questions rather than jumping to the conclusion, right? So that is how you have to separate objection out of an excuse, right? So that is what is an objection. ऑब्जेक्शन आपको मौका देता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट सही सही में आपको बताता है ये मेरा प्रॉब्लम है, गिव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट मोर इन्फो और ऑप्शन टू द कस्टमर। और अगर ये नहीं जमता तो ये ले लीजिए, ठीक है, अगर हाँ योर कंसर्न इज वैलिड, दिस ड्रेस यू कांट वेयर इन ऑफिस, यू शुड बाय दिस देन, right? So when there is an objection it will give you more information and you can offer more option or information to the एक्सक्यूज जब होता है तो आप उसको अल्टरनेटिव कोई चीज भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कंसर्न क्या है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्शन एंड एक्सक्यूज। सो फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्यूजेस पार्ट को हम साइड पे रखते हैं, क्योंकि एक्सक्यूजेस इज नथिंग बट इट इज अ वर्जन ऑफ ऑब्जेक्शन विच इज अनअर्थ, राइट। तो आपको एक्सक्यूज को अनर्थ करना होगा बाय आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन, देन इट विल कन्वर्ट टू ऑब्जेक्शन एंड देन यू हैव टू हैंडल दैट ऑब्जेक्शन वेल, राइट। सो अब मैं बोला ऑब्जेक्शन अगर ठीक से हैंडल नहीं किया जाए तो वो कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट, व्हेन अ पर्सन बिकम व्हेन अ प्रॉब्लम बिकम इंपॉर्टेंट देन द पर्सन, तब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, राइट। व्हेन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज अ बिगर देन द पर्सन, then generally you get to the conflicts. Always conflict. So to avoid conflict, you have to be very humble in front of investor. You have to behave in a friendly manner with the customer. You have to establish some social norms with a limited time you have spent with the client. अगर पुराना client है तो काम आसान है, मगर नया client है तो in limited time you have to establish the social norms so that it won't result into conflicts, right? So moving to objection, how to handle ऑब्जेक्शन और को कैसे हैंडल किया जाता है, उसके कुछ सिंपल टिप्स है, ठीक है, टॉप टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। तो ऐसे कुछ 17-18 ट्रिक्स है विच यू कैन यूज व्हेन यू कन्फ्रंट विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो व्हाट आर दोस सिंपल रूल? फर्स्ट, प्रिपरेशन, जितना ज्यादा हो उतना तैयारी करके जाओ। कुछ ऑब्जेक्शन बड़े कॉमन होते हैं, वो आते ही है, राइट, उसके लिए आपके जवाब रेडी होने चाहिए, राइट। प्रिपरेशन ऑलवेज हेल्प to handle the objection in a better way, right? So do as much preparation objection that your customer usually had। तो आपको पता होता है कि कस्टमर के जनरली क्या क्या सवाल आते हैं, है ना। मार्केट टाइमिंग को लेकर आप किसी प्रोडक्ट लेके गए, बोले मार्केट बड़ा हाई है, राइट। अब ये ना बड़ा कॉमन ऑब्जेक्शन है, हाउ टू हैंडल इट, राइट। तो मार्केट बड़ा हाई है उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट। सो कस्टमर को जार्गन समझ में नहीं आते, यूज लीस्ट जार्गन्स, यूज द सिंपल लैंग्वेज, नो योर कस्टमर वेल, राइट। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कस्टमर का बिजनेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, है ना, इसका उसका ओरिजिन क्या है ना, महाराष्ट्रियन है, बंगाली है, गुजराती है, दैट आल्सो यू शुड नो उसको बोलते हैं नो योर इन ट्रू सेंस योर कस्टमर, राइट। सो यू शुड कस्टमर वेल, राइट।
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई एम अ गुजराती एंड द कस्टमर इज ऑल्सो गुजराती। अगर उसको समझ में आ गया मैं गुजराती हूँ फिर भी मैं हिंदी में बात करूंगा ना, उसको पसंद नहीं आएगा, राइट? सो बेटर टू स्पीक इन गुजराती इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट? सो आई एम जस्ट quoting an example. So create an atmosphere where customer feel comfortable talking to you, revealing the information, so you do not have to deal with the excuses, right? नंबर वन। दूसरा, कभी भी ये ना मिलना चाहिए, क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ सेल करने आए। देखो, कस्टमर नेवर बाय प्रोडक्ट, दे ऑलवेज बाय सोल्यूशन, राइट? Always try to sell a solution rather than selling a product. Do not go in with a mind that I wanted to sell this product, right? कस्टमर कौन है हमारा? जिसके पास सरप्लस पैसा है, राइट? जो सरप्लस पैसा है वो हमारा कस्टमर है। नाउ वी कांट प्री डिफाइंड द प्रोडक्ट, ये कस्टमर है, इसको मैं यही प्रोडक्ट दूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता। मतलब प्री मेडिटेटेड शॉट बोलते हैं ना क्रिकेट में, कि पहले से डिसाइड करके आप स्ट्रोक कौन सा खेलना है वो डिसाइड करके रखते हो, उसमें ज्यादातर विकेट जाती है। डू नॉट ट्राई टू डू एनी प्री मेडिटेटेड शॉट्स। Listen the customer first by asking relevant questions, and preparation of your product, of your concepts, of variety of options that you are having. Preparation is a key, right, to handle the objection. So first, preparation. Second, do not interrupt. इवन इफ कभी कभी आप हम क्लाइंट को थोड़ा बहुत प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और क्लाइंट उसके ऑब्जेक्शन बताता है, और जैसे ही ऑब्जेक्शन बताता है आपको पता है उसका क्या जवाब देना है। तो अभी तो क्लाइंट ने अपनी लाइन खत्म नहीं की और आपने उसको जवाब देना शुरू कर दिया। नाउ दिस इज वेरी ऑफेंसिव बिहेवियर। आपको भले पूरा आंसर पता हो, राइट? इफ यू नो हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन एंड व्हाट आर द पॉइंट दैट यू शुड बी टेलिंग नेक्स्ट वंस ही कंप्लीट द ऑब्जेक्शन, पहले उसको पूरा सुन लो, उसके बाद आपके पॉइंट बड़े आराम से उसको बताओ। अदरवाइज द इन्वेस्टर, अगर आपने बीच में उसको रोक दिया तो ही विल फील ऑफेंडेड। फिर कभी वो इतना ऐसा ऐसा ऑब्जेक्शन होता है बहुत सिली सा होता है, और जिसका आंसर है ना बड़ा आसान होता है, तो हम ऐसा बोलते हैं उसमें क्या है, वो तो ऐसे हो जाएगा। नाउ इन दैट केस यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग हिज ऑब्जेक्शन, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज ऑब्जेक्शन, हाउएवर व्हाट डिग्री ऑफ इंफीरियर इट इज, राइट? कितना भी सिली क्यों ना हो, राइट? डू नॉट, बहुत आसान है तो ऐसा कर देंगे, राइट? दिस इज व्हाट, इसमें कुछ नहीं है। उसको उसके ऑब्जेक्शन को रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट इज ऑब्जेक्शन, या इट इज अ वैलिड, वेरी वैलिड ऑब्जेक्शन। सो हाउ टू डू इट? पहले तो थैंक्स बोलो। You should thank to the customer for raising the objection, because it is giving you an opportunity to explain, right? So always thank the customer कि सर हाँ आपका, thank you for asking this objection, it is a very valid objection. This is how one should be treating once you are handling the objection, right? जैसे कि बोला कि मार्केट बहुत ऊपर है, अभी पैसा नहीं लगा सकते, क्या लगाना चाहिए कि नहीं, वो ऐसा पूछ रहा है। इतना बड़ा 50,000 सेंसेक्स हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? नहीं लगा सकते अभी पैसा। तो अब आपको क्या पता है? नहीं सर 50,000 नहीं देख सकते, वो तो 1 लाख होने वाला है। नाउ दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। नाउ सो यूर थैंक यू फॉर asking this question, it is a very valid question, and uh, I think one should, it is better, it is good that you asked it, right? ये बहुत अच्छा किया कि आपने पूछा, ताकि I get an opportunity to explain you how it should be measured. और उसके साथ you have to give them the analogies and stories to explain the thing, right? Analogies and stories are very important. Analogy मतलब आप कोई analogy और story में क्या फर्क है? Analogy is you are comparing the complex problem with a real life familiar things, right? तो जैसे कि मार्केट के रिटर्न है वो टेम्परेचर की तरह मूव करते हैं, है ना? मतलब में इट इज ए मीन रिवर्टिंग रिटर्न होते हैं, वो मीन रिवर्टिंग होते हैं। जैसे कि टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाए, 50 डिग्री हो जाए, तो वो मीन की तरफ आता है 30 डिग्री, और टेम्परेचर 15 डिग्री हो जाए तो भी वो मीन की तरफ आता है 30 डिग्री। नाउ दिस इज कॉल्ड एनालॉजी, इट इज नॉट अ स्टोरी। आपने टेम्परेचर समझा के, रिटर्न जब पिछले रिटर्न बहुत ज्यादा होते हैं, मीन से ज्यादा होते हैं, उसके मतलब ये है कि आने वाले रिटर्न कम होंगे, और पिछले रिटर्न बहुत खराब हो गए। जब क्लाइंट का कॉमन ऑब्जेक्शन था रिटर्न बड़े खराब है, तो जैसे कि 8% ही है, तो इक्विटी का तो 12-15 बोलते थे, तो 8 ही आया है। तो हम क्या बोलते सर, यू आर वेरी राइट, इक्विटीज रिटर्न आर ऑलवेज इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ऑफ द इकोनॉमी,
तो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12% जैसा रहता है, तो इक्विटी की रिटर्न उतनी ही होनी चाहिए, मगर 8% है। इट इज जस्ट लाइक टेम्परेचर के मुंबई का टेम्परेचर 35 डिग्री रहता है ऑन एन एवरेज। जब वो 12 डिग्री हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं वो 6 डिग्री जाएगा, है ना। विंटर में वो 12 से 35 की तरफ आता है, मतलब बढ़ता है। अगर वो 48 डिग्री हो जाता है समर में, तो उसका मतलब क्या होता है, वो वापस 35 की तरफ आएगा, वो 55-60 नहीं जाएगा। जैसे टेम्परेचर होते हैं वो मीन रिवर्टिंग होते हैं, वैसे रिटर्न भी मीन रिवर्टिंग। अगर पिछले रिटर्न नॉर्मल एवरेज से खराब है तो आने वाले रिटर्न अच्छे हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड टेल, दिस इज कॉल्ड एनालॉजी, राइट। दूसरी होती है स्टोरीज। पीपल कैन इजीली कोरिलेट विद स्टोरी, और क्लाइंट का अटेंशन लेवल है ना, जब आप स्टोरीज बोलते हो तो बढ़ जाता है, राइट। सो यू शुड टेल समथिंग इन टर्म्स ऑफ स्टोरी कि सर, एक आपको, जैसे कि स्टोरी होती है वो कैसी होती है, एक जंगल था ना, जंगल में एक शेर रहता था। इट विल स्टार्ट विथ लाइक दिस थिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉजी एंड स्टोरीज? एनालॉजी इज कंपेयरिंग योर आइडिया, complex idea with a very real life familiar situations. And story is nothing but it is like when you read a story of पंचतंत्र हितोपदेश कथा, तो वो कैसी होती है ना, कैसी इंटरेस्टिंग होती है, राइट। इवन एनी a person fall in any age group love to listen stories, राइट। तो हमेशा स्टोरी के फॉर्म में बताओ, राइट। तो जैसे कि परफॉर्मेंस इज 25% CAGR रिटर्न, अभी ना ये किसी को नहीं समझ में आएगा। तो मेरे क्लाइंट थे, बहुत सालों बाद मुझे फोन किया, बोले यार तुमने वो टैक्स प्लान जैसे फंड में मुझे पैसा लगवाया था, और पता नहीं क्या हो गया है, 8-12 साल हो गए, और पता नहीं तुमने कहाँ पे डलवा दिया था, क्या है, कुछ मिल नहीं रहा। अब 12 साल पुराना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो उसका रिटर्न होगा 16% CAGR, समवेयर अराउंड। अगर 16% CAGR होगा तो पैसा 5 गुना होगा, राइट। तो अब मैं किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहा हूँ और मैं उसको ये स्टोरी सुन रहा है कि ऐसे ही क्लाइंट आए, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, फिर मैंने उसका स्टेटमेंट निकाल के देखा तो 1 लाख का 6 लाख रुपए हो गया था। तो जब वो एकदम गुस्सा होके आए थे, जब मैंने उसको स्टेटमेंट दिखाया तो वो तो दंग रह गए ना। 15% 16% CAG ना, इन्वेस्टर को कुछ समझ में नहीं आता, मगर 1 लाख का 7 लाख उसको समझ में आता है, राइट। तो सिंप्लीफाई दोस थिंग फॉर इन्वेस्टर एंड ट्राई टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ अ स्टोरी कि एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक क्लाइंट आया था और उसका ऐसा। अब उसके दिमाग में अगर टैक्स प्लान में किसी ने पैसा डाला था तो पैसा 6 गुना, 5 गुना 6 गुना हो गया, राइट। सो थैंक क्लाइंट फॉर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन, एंड देन से अग्री टू हिज क्वेश्चन। पहले तो उसके क्वेश्चन को अग्री करो कि अग्री विथ योर कस्टमर बिफोर एड्रेसिंग देयर ऑब्जेक्शन। इफ यू शो दैट यू अंडरस्टैंड देम, दे अंडरस्टैंड यू। अगर आप ये दिखाते हो कि आप उनको समझ रहे हो, वो भी आपको समझेंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अग्रीइंग टू क्लाइंट ऑब्जेक्शन बिफोर गिविंग योर पार्ट ऑफ आंसर, राइट। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, कस्टमर, योर परफॉर्मेंस इज इंफीरियर देन द अदर फंड्स। क्लाइंट ने सीधा आपको पॉइंट ब्लैंक पे बोल दिया। आपको क्या बोला? यस आई अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना कि परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट दे आर साइक्लिकल इन नेचर एंड केप्ट ऑन चेंजिंग। जो परफॉर्मेंस है वो साइक्लिकल, तो वो रोज चेंज होते हैं एंड केप्ट ऑन चेंजिंग। उसके बाद आपके पास प्रिपरेशन होना चाहिए कि देखो कि ये जो फंड है, ये जनवरी महीने में ये परफॉर्मेंस था, फरवरी में ये था, मार्च में ये था, 1 साल पहले ये था, 5 साल पहले ये बेस्ट परफॉर्मिंग था, 3 साल पहले ये एवरेज परफॉर्मर था। तो दे आर साइक्लिकल। आपने किस टाइम का देखा है वो जानना भी जरूरी है, राइट। सो दिस इज हाउ वन शुड। तो पहले आप कैसे करें, यस आई अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बट दे आर साइक्लिकल इन नेचर एंड केप्ट ऑन चेंजिंग। फिर आपके पास उसके कुछ वैलिड प्रूफ्स होने चाहिए, राइट। If you think you are sure that your customer builds the objection on personal assumption, अगर आपको लगता है कि ना कुछ पर्सनल अजम्पशन पे कस्टमर ने बोल दिया है, एट दैट टाइम यू कैन डेनी ऑल्सो। आप वो ऑब्जेक्शन से डिनाई भी कर सकते हो। यू शुड फील व्हेन यू कैन डू इट। आपको ये पता चल जाएगा आपका एकदम ही इनवैलिड है। जैसे कस्टमर ने आपको ऐसा बोल दिया, द परफॉर्मेंस इज पथेटिक। अब ये एक्चुअली है नहीं फैक्ट, राइट। ये तो आपका परफॉर्मेंस एकदम पथेटिक है, कुछ क्लाइंट बोल देते हैं, so in that case you can Danny also. Let us have a look at latest performance. Out of 4-8 fund, this fund is ranking in the second quartile. तो second quartile fund है, मतलब above average return है। Probably शायद आपने वो परफॉर्मेंस देखा होगा कुछ अदर डेट्स का, एट दैट टाइम द परफॉर्मेंस में बी म्यूटेड, राइट। उसको कंप्लीटली
रिजेक्ट मत कर दो, मगर अभी ये है, आपने जब देखा होगा तो शायद हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, वेर द परफॉर्मेंस कैन बी म्यूटेड, तब हो सकता है म्यूटेड। अब देखो उसने पथेटिक बोला, आपने उसको रिफ्रेम करके क्या कर दिया, म्यूटेड बोल दिया। इट इज ऑलवेज अ बेटर वर्ड, तो ऑलवेज रिफ्रेश सच वेरी अग्रेसिव वर्ड इनटू अ सॉफ्ट वर्ड व्हेन यू आर स्पीकिंग, राइट। तो पथेटिक परफॉर्मेंस का आप म्यूटेड परफॉर्मेंस बोल सकते हो, भाई हाँ मार्केट चल रहा था, वो नहीं चला था उस पीरियड में, सो इट हैज अ म्यूटेड परफॉर्मेंस, लेटर इट हैज डन वेल। ये आने वाले पार्ट में भी आएगा। सिक्स्थ पॉइंट, क्लैरिफाई। अगर आपको क्लाइंट का ऑब्जेक्शन समझ में नहीं आया था, देन आस्क देम फॉर क्लैरिफिकेशन। डू नॉट गेस एनीथिंग, गेसिंग इज वेरी हार्मफुल। तो अगर आपको समझ में नहीं आया एंड तो बार बार क्वेश्चन पूछिए और ट्राई टू क्लैरिफाई। Questioning a client is very important thing. Rather than you speaking more, you should question more, right? Generally, conversation का control किसके हाथ में होती है? When two people are communicating, किसके पास conversation का control होता है? जो ज्यादा बोलता है वो, या जो ज्यादा सुनता है वो? Actually, conversation का control जो बंदा ज्यादा सुनता है उसके पास होता है, right? तो uh, जैसे कि जो बंदा ज्यादा बोलता है, he is revealing all the information, और जो बंदा सामने बैठ के क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई आर यू फील सो, व्हाट आर योर ओपिनियन, ओके, इज इट सो, हाउ हाउ कैन यू बी सो श्योर। आप जब ऐसे सवाल पूछते हो ना, तो सामने वाला जवाब देता है और उसके पास कन्वर्सेशन का कंट्रोल होता है। सो ऑलवेज ट्राई टू आस्क कंसल्टेटिव क्वेश्चंस rather than jumping to your own story on part of stories and conclusion, right? तो जैसे कि इनकम फंड आप बेचने जा रहे हो, राइट, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। इनकम फंड को कब फायदा होता है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट रेट जब नीचे कब जाते हैं, जब इन्फ्लेशन नीचे जाती है, और तब इनकम फंड में गेन आती है, राइट, तो कैपिटल गेन आती है। तो इफ यू वांट टू सेल दिस थिंग, हाउ यू शुड बी सेलिंग इट, राइट। सो yeah, just a second. सो फॉर एग्जाम्पल यू आर कन्फ्रंटिंग टू क्लाइंट, और क्लाइंट को आपको इनकम फंड देना है, उसके पास सरप्लस पैसा है, उसको एफडी भी कर सकता है इन करंट एटमॉस्फेयर, आपको उसको इनकम फंड देना है। तो आप बोलेगे सर अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से नीचे जाते हैं, क्योंकि शायद इन्फ्लेशन नीचे जा सकती है, तो इस फंड में आपको फायदा होगा क्योंकि इसमें कैपिटल गेन होता है। अब आपने तो आपका स्टोरी पूरा बता दिया, अब क्लाइंट बोलेगा यार इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा यहाँ से, राइट। अब आप इन्फ्लेशन समझाने जाओगे कि नहीं इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ेगा, क्रूड के प्राइस नीचे जाएंगे, और वो बोलेगा नहीं क्रूड के प्राइस तो ऊपर जाएंगे। अब 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 ये जो लाइन चली गई वो क्रूड पे चली गई, ठीक है। अब क्रूड पे डिस्कशन चला गया इनकम फंड से सीधा। अब क्रूड पे डिस्कशन शुरू हो गया तो जियो पॉलिटिकल टेंशन चालू, उस पर डिस्कशन जाएगा। जियो पॉलिटिकल टेंशन पे बात जाएगी तो पॉलिटिक्स पे जाएगी, फिर ट्रम्प, है ना, और ये सारी चीजें, और बिडेन, यूएस की पॉलिसी, चाइना, है ना, जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी सब बाहर आएंगे। अब ना ये पूरा डिस्कशन का बंटाधार हो जाएगा, राइट। सो रादर देन आस्किंग, रादर देन जंपिंग टू टेल योर पार्ट ऑफ स्टोरी, आस्क सुटेबल क्वेश्चन कि भाई उसके पास पैसा है, तो सर आप इफ यू वांट टू पुट योर इन्वेस्टमेंट इनटू सेफ, आर यू लुकिंग फॉर एनी फिक्स्ड डिपॉजिट। तो रेट शायद पता नहीं, रेट मुझे आई हैव नॉट, आई एम नॉट श्योर व्हाट आर द रेट नाउअडेज, मगर यू कैन, आर यू लुकिंग फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट और समथिंग लाइक दैट, उस उसके एरिया में जाके बात करो। तो फिक्स डिपॉजिट में तो वही बोलेगा क्या रेट है, 5, 5.5, 6% मिलेगा, उसमें क्या रख के करेंगे। अब फिक्स डिपॉजिट पे तो उसी ने कैंसिल लगा दी, राइट। नाउ यू हैव अ प्ले ग्राउंड, तो फिक्स डिपॉजिट उसने कैंसिल लगा दी। तो अब है ना, अभी भी आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना। इफ आई एम एट योर प्लस, आई विल डू ओके सर, तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा 2-3 महीने में, तब आप लगा दीजिए, तब फिक्स डिपॉजिट के रेट भी ऊपर जाएंगे। अरे रेट ऊपर जाते फिर भी ये लोग बढ़ाते थोड़ी है, मुझे तो 1-1.5 साल के लिए रखना है सिर्फ पैसा, और 1-1.5 साल में रेट ऊपर नहीं गए तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो हाथ में ही लेके बैठ जाऊंगा। बोला हाँ मतलब नहीं, तो 2-3 महीने में रेट ऊपर जाए तब डाल देना, 2-3 महीना वेट कर लीजिए। तो बोलेगा नहीं लगता मुझे रेट ऊपर जाएगा, ये तो नीचे ही जाने वाले हैं।
अब रेट नीचे जाएगा, वो किसने बोला? वो कस्टमर ने बोला। मतलब ये किसका व्यू है? कस्टमर का व्यू है। अब आपको इन्फ्लेशन की बात ही नहीं करनी। अब आपको ये बोलना है कि सर इफ मुझे भी ऐसा लगता है रेट शायद 2-3 महीने में 4 महीने नीचे ही जाएंगे, तो एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे रेट नीचे जाने से फायदा होता है। बोले वो क्या होता है? बोले इनकम फंड। फिर उसको इनकम फंड समझा दो, राइट। अब किसने बोला रेट नीचे जाएगा? क्लाइंट ने बोला। किसका व्यू है? क्लाइंट का व्यू है। गलत जाएगा तो किसका जाएगा? क्लाइंट का जाएगा, राइट। आपका कम उस पर स्टेक पे लगा है, राइट। तो अब जब व्यू क्लाइंट के होते हैं ना, वो उस पर अड़िग रहता है, मगर जब व्यू हमारे होते हैं ना, उस पर वो अड़िग नहीं रहता, यार मुझे तो डाउट ही था पहले से, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी व्यू है वो क्लाइंट का व्यू है वैसा रिप्रेजेंट करे, वैसे आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, राइट। सो अगेन कमिंग टू whatever is your customer objection, if they are not clear, ask for clarification and ask as many questions as you can, right. Say it. If you are not sure that customer objection will be expressed, you should try to express them by yourself. अगर क्लाइंट एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपना ऑब्जेक्शन ठीक से, तो आपको उसको एक्सप्रेस करना है ठीक से, राइट। आई थिंक इट इज वेरी इजी कि क्लाइंट कभी कभी अच्छे से रीफ्रेज नहीं फ्रेज नहीं कर सकता अपना ऑब्जेक्शन। हेल्प हिम टू फ्रेज इट प्रॉपरली सो देयर इज नो ambiguity. So many of my clients were having the same concern which you are having. After investing they are happy with the result, right? मतलब है आपका जो कंसर्न है ना सर वो एकदम सही है, एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग दे आर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट, राइट। तो हाँ, कुछ आपके डाउट थे जो मेरे पुराने क्लाइंट को भी थे, मगर इन्वेस्टमेंट के बाद दे वर वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट. सो दिस इज हाउ यू शुड हैंडल दिस. 8. So some objection can be handled easily if you demonstrate some feature of the products or offer a trial. कुछ ऑब्जेक्ट ना बड़े इजीली हैंडल हो सकते हैं अगर आप कुछ फीचर उसको दिखाओ, जैसे कि उसको मार्केट का कंसर्न है कि मार्केट नीचे जाएगा, राइट। नाउ वो उसका कंसर्न है, उसने ऑब्जेक्शन दिया कि मार्केट का मुझे डाउट है। जैसे आपको लगे मार्केट पे उसको डाउट है, राइट, और आपने बोला सर नहीं ये तो ऊपर ही जाएगा यहाँ से, या तो मार्केट पर नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, हमें नहीं पता, राइट। मगर उसको डाउट है और आपने बोल दिया नहीं ये तो ऊपर ही जाएगा, और फिर आपने पैसा लगा दिया और ये नीचे गया, तो आप क्या करोगे, राइट। सो डू नॉट गेट इनटू दोस काइंड ऑफ सिचुएशन. अगर क्लाइंट ये बोले कि मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होगा, हम पैसा लगा दूंगा, तो मतलब नहीं, वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उसको डर लगता है पैसा कम हो जाए. उसके लिए सुटेबल प्रोडक्ट कौन सा है? बैलेंस एडवांटेज. तो ना फुल्ली इन्वेस्टेड इक्विटी को क्रॉस कर दो, आपके दिमाग से निकाल दो, ये कैंसिल है क्लाइंट के लिए. अब आप बताओ सर ऐसी प्रोडक्ट भी आती है जो मार्केट नीचे जाए तो ऑटोमेटिक पैसा डेट से इक्विटी में लगाती है, राइट, और जब मार्केट ऊपर जाता है वो प्रॉफिट भी बुक कर लेता है. बोले कौन सी प्रोडक्ट है? बोले बैलेंस एडवांटेज फंड है. वो अब मार्केट अभी महंगा है, आपका कंसर्न भी वैलिड है, राइट. जैसे कि तो उसमें ना 100 रुपए में से 38 रुपीज ही इक्विटी में है. अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 38 रुपीज तो बढ़ेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो उसके पास ही 80 रुपीज तक इक्विटी ऐड कर सकता है, तो वो ग्रेजुअली पैसा ऐड करता जाएगा. तो वी डोंट नीड टू टाइम द मार्केट, द फंड विल टाइम द मार्केट एज पर द वैल्यूएशंस, राइट. सो this is how you can handle this kind of situation. So try to do consultation, asking suitable question rather than telling your part of the story. So this is what, again, do more consultation, right. काफी लोग बोलते हैं मार्केट बड़ा हाई है, 50,000 का सेंसेक्स से पैसा नहीं लगाना. तो मैं जनरली बोलता हूँ कि सर देखो एक टाइम पे 21,000 भी सेंसेक्स था 2007 में, वो तब का हाई था. आज वो बॉटम आता है तो भी वो नहीं आता, तो हाई बदलते रहते हैं, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल a kid's weight is 10 year kid weight is 25 kg. 10 साल के बच्चे का, नॉर्मल बच्चे का वेट 25 kg के आसपास होता है, राइट. उसका वेट है ना 50 kg हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? बोले ओवरवेट, राइट. मगर आपने टाइम लाइन तो सुना ही नहीं. जब उसका एज 16 साल होता है तब उसका वेट 50 kg होता है. नाउ एट 16 ईयर किड शुड हैव 45 to 50 kg वेट, राइट. उतना होना चाहिए उसका, राइट. तो क्योंकि जो वेट है इट इज रिस्पेक्ट टू योर एज, और आपका एज ग्रोथ क्या होता है उसके रिस्पेक्ट में. वैसे ही मार्केट है वो इकोनॉमी के साथ चलता है, राइट. अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो मार्केट भी ग्रो करता है. तो इकोनॉमी हैज टू मार्केट हैज टू मेजर विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी. इफ इकोनॉमी हैज टू ग्रो इन 5 years the market has to grow from here, right. So do not look at market level. सिर्फ एज पे मत देखो, वेट पे मत देखो, उसका एज भी पूछो
कि कितना है, तो सिर्फ मार्केट का लेवल मत देखो, इकोनॉमी का ग्रोथ भी देखो, राइट। सो मार्केट का लेवल शुड बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो ये जो फंड है वो वैल्यूएशन देख के इन्वेस्टमेंट करता है रादर देन लुकिंग एट द डेली क्लोजिंग ऑफ द सेंसेक्स, राइट। तो दिस इज व्हाट इज। नौवां पॉइंट है राइट इट। अगर क्लाइंट के पास बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, मल्टीपल ऑब्जेक्शन, तो क्या करना है आपको, सारे जो ऑब्जेक्शन है वो पेपर पे एक बाय एक लिखने हैं, और फिर वन बाय वन यू हैव टू कैंसल क्रॉस ऑल द ऑब्जेक्शन एंड रिजॉल्व इट। दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। तो उसने चार ऑब्जेक्शन दिलाए, तो पहले उसको लिख दे, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है, फिर एक बाय एक सबका हैंडलिंग कीजिए, और जब सब पे आप कैंसिल कर दो देन द डील गॉट क्लोज्ड, राइट। दैट इज व्हाट इज राइट इट। रीप्रायोरिटाइज, 10वां ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रीप्रायोरिटाइज। Many objections are very subjective as customer base them on their individual priorities. तो कस्टमर को ना प्रायोरिटी सेट करने नहीं आता, वो इमोशनल होते हैं। जैसे कि आप कोई रिटायरमेंट फंड लेके गए कस्टमर के पास, कस्टमर बोले मेरे बेटे की एग्जाम ग्रेजुएशन के लिए मुझे पैसा चाहिए 1-2 साल बाद, तो भी रिटायरमेंट का मैं नहीं कर सकती, क्या कर सकता, राइट। अब आप देखो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, रिटायरमेंट सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो इन दैट केस ना यू हैव टू रीप्रायोरिटाइज थिंग फॉर द क्लाइंट्स। तो उनको देखिए सर, देखिए आपका जो पैसा है वो इंपॉर्टेंट है। 3 गोल किसी की भी लाइफ में होते हैं, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और रिटायरमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एम्पिरिकली इफ यू गूगल इट यू विल फाइंड इट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिटायरमेंट। क्यों? रिटायरमेंट की लोन नहीं मिलती, चाइल्ड एजुकेशन की लोन मिल जाती है, चाइल्ड मैरिज के लिए भी आजकल तो लोन मिल, बच्चों के मैरिज के लिए भी लोन मिल जाती है, मगर आप देखो रिटायरमेंट के लिए कभी लोन नहीं मिलती। सुना है कभी रिटायरमेंट लोन? क्योंकि तब आपकी इनकम ही नहीं होती तो आपको लोन कौन देगा, है ना। सो दैट इज व्हाट इज वन शुड हैंडल द सिचुएशन, और हेल्प देम टू प्रायोरिटाइज कि सबसे पहले सर आपको रिटायरमेंट देखनी, फिर आप चाइल्ड एजुकेशन और वो देखिए, उसके बाद जो स्पेयर पैसा बचता है उसको आप चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज के लिए देखिए, क्योंकि ये दोनों के लिए लोन मिल सकती है, एंड लोन योर चाइल्ड कैन रीपे वंस ही स्टार्ट अर्निंग। मगर आपके रिटायरमेंट का पैसा वो शायद नहीं भी देगा, उसकी शादी हो जाएगी उसके बाद, राइट। सो दैट यू हैव टू, आपको उसको इमोशनल से प्रैक्टिकल रियलिटी की तरफ लाना है, राइट। सो हेल्प हिम टू रीप्रायोरिटाइज थिंग्स। रीनेम, जैसे कि मैंने पहले बताया कुछ वर्ड बहुत ऑफेंसिव होते हैं, जो क्लाइंट बोलता है पैथेटिक परफॉर्मेंस, राइट। इफ you change some words in the objection you may get sentence that sounds much more positive than what your customer said. Your question is valid and important, जैसे कि ये आपको, your question is valid and important, now I understand that you are having deep knowledge of investing. उसने ऐसा बोला, pathetic है ऐसा बोल दिया, your question is valid and important, now I understand that you are having deep knowledge of investing. इससे ना क्लाइंट को थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट, कि भैया हाँ मुझे अंडरस्टैंडिंग है, नाउ ही रिकॉग्नाइज इट। एग्जाम्पल द परफॉर्मेंस माइट बी, अब एग्जाम्पल उसका कहना है कैसा देना आपको, तो परफॉर्मेंस माइट बी म्यूटेड, इंस्टेड ऑफ बैड आपको क्या बोलना, म्यूटेड, व्हेन यू हैव लास्ट टाइम ऑब्जर्व्ड इट बट इट बाउंस बैक शार्पली देन। जब आपने देखा था म्यूटेड था, मगर उसके बाद ये बहुत शार्पली बाउंस हुआ, तो आपने बैड का क्या कर दिया, म्यूटेड कर दिया। सो ऑलवेज रीफ्रेज द वर्ड इन मच पॉजिटिव सेंस। सो ऑलवेज यूज ह्यूमर इन सम एप्रोप्रिएट सिचुएशन टू कूल डाउन एटमोस्फियर। एक क्लाइंट के साथ अच्छा रेपो बनाने के लिए आपको ह्यूमर भी यूज करना होता है। जैसे कि लुक एट दिस लवली फंड, इट विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन इट, राइट। सो क्लाइंट को अच्छा लगेगा। जैसे कि किसी क्लाइंट के साथ बात करते करते हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ये पैसा तो बहुत जरूरी है, 6-8 महीने चाहिए, इस पर नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं ना, आपने आपने सही बात बताई, 6 महीने का पैसा, 1 साल का पैसा इक्विटी में नहीं लगा सकते, उसमें नुकसान हो सकता है। एक क्लाइंट थे 70 साल के एज के थे, उन्होंने मुझे बोला सर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो बोले मैं तो केले भी कच्चे नहीं खरीदता, है ना, मैं केले कच्चे करूंगा और 5 दिन पकने में लगेंगे, उससे पहले मैं चला ना जाऊं। That is what he's trying to say. So you can use those kind of humors. It will create a bonding between you and your client, और वो ज्यादा ओपन अप होके बात करेगा, और थोड़ा जो सिचुएशन है उसको रिलैक्स कर देगा, राइट। सो ऑलवेज यूज ह्यूमर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। रिफर्स टू अदर्स, कुछ क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको कोई एग्जांपल देने होते हैं। रिफर टू प्रीवियस कस्टमर हु हैड द सेम कंसर्न बिफोर दे बॉट द प्रोडक्ट एंड यू वर फुल्ली सेटिस्फाइड व्हेन दे इन्वेस्टेड इन, राइट। तो
काफी कस्टमर के सेम कंसर्न होते हैं, यार मेरा हार्ड एंड पैसा कहीं कम ना हो जाए। तो बोले सर यही सब लोगों के कंसर्न होते हैं, ये मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं जिनके यही कंसर्न थे, बट एक बार उन्होंने इन्वेस्ट किया फिर इन्वेस्ट करते ही गए। राइट। सो ऑलवेज रिफर्स टू अदर्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, शो देम वेरी बिग पिक्चर अबाउट इन्वेस्टिंग। देखो क्लाइंट को है ना बड़े पिक्चर दिखाओ, तो ही वो उसका अटेंशन स्पान बढ़ेगा। राइट। आपको बड़ा पिक्चर दिखाना, ट्राई टू शो देम क्या 10 15 20 साल बाद क्या हो जाएगा आपके साथ। राइट। तो उसका एक प्रोसेस होता है, इसको मैं GIFTS बोलता हूँ। स्टार्ट विथ ग्रिड। सर आप इतने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे सिर्फ, तो ये पैसा इतना हो जाएगा, पास्ट में इतना हुआ था। और तो ग्रिड, जब आप करोड़ों में बात करते हो ना, तो वो लालच आती है और उसके ना एंटेना खड़े हो जाते हैं, वो ध्यान से सुनना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट विथ ग्रिड। ग्रिड, यू आर नॉट ट्राइंग टू मिससेल एनीथिंग, यहाँ पे आपको मिससेल नहीं कर सकते, यू आर जस्ट ट्राइंग टू ग्रैब एन अटेंशन। पता है कभी आप लोग पता नहीं कितने लोग इसमें से गवर्नमेंट बस में ट्रैवल किया है नॉर्थ में कहीं पे, तो उसमें ना वो कीड़े मारने की, पेट में आपके बहुत सारे कीड़े होते हैं, वो मारने की दवा वाला आता है। वो क्या करता है, बस में आता है और जोर से आए, व्हेन आई वाज किड आई हैव विजिटेड टू हरिद्वार विद माय पेरेंट्स, और मुझे बस से दिल्ली जाना था। तो वो बंदा आया, उसने जोर से वो बस के उस पे बॉडी पे पहले तो लकड़ा लगाया जोर से, तो आवाज आई तो वी गॉट एन अटेंशन, ये क्या हुआ करके, तो उसके साथ तरफ देखने लगे। फिर उसने एक पानी का बोतल निकाला, डेमोन्स्ट्रेट किया, देखो आपके इस पेट में ऐसे कीड़े हो सकते हैं, ये कीड़े अंदर ही रहते हैं और सालों तक रहते हैं और आपका खाना खा लेते हैं, और इससे आपको ये प्रॉब्लम होते हैं। तो उसने मुझे दिखाया मेरे पेट में भी ऐसे कीड़े होंगे और आप ये दवाई खरीद। सो व्हाट ही ट्राई टू ही वाज जस्ट ट्राइंग टू ग्रैब आवर अटेंशन। तो व्हेन यू स्पीक समथिंग वेरी बिग, ग्रीड की वजह से, ग्रीड एक ऐसी इमोशन है, सब में होती है, किसी में कम होती है किसी में ज्यादा होती है, बट इट विल वेरी हेल्पफुल टू ग्रैब एन अटेंशन। तो अटेंशन आपने ले लिया, फिर आपकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, because for to listen to your information you need to have your attention, right? You need to have his attention. तो पहले लालच दिखाओ फिर इंफॉर्मेशन दो। तो आई, गिफ्ट, गिफ्ट वर्ड याद रहेगा ना, आई, इंफॉर्मेशन दो। इंफॉर्मेशन देने के बाद फियर क्रिएट करो, अगर आपने ये नहीं किया तो आपके साथ क्या हो सकता है ना, मतलब महंगाई इतनी होगी और आपका पैसा इतना सा टुच्चा सा होगा। राइट। तो फियर दिखाओ कि भाई ये नहीं किया तो ये होगा। फिर टी, टेपर इट डाउन। आपने ग्रिड बहुत ज्यादा जगह लगा दी है ना, तो आपको उसको टेपर इट डाउन करना है। टी, कि देखो इतना रिटर्न पास्ट में मिला था उतना नहीं मिल सकता, मगर इतना मिले, मतलब 16% मिला था शायद उतना ना मिले, 10% या 12% मिले ना, वो भी बहुत अच्छा है। सो नाउ यू आर टेपर इट डाउन। आप जो एक्सपेक्टेशन की उसको आप क्या कर रहे हो, टेपर कर रहे हो। देन शिप मेंटालिटी। राइट। मतलब ना भेड़ चाल होते सब करते हैं ऐसा, आप ही नहीं कर रहे। सब एवरी वन इज इन्वेस्टिंग। देखो इन्वेस्टर है ना, कस्टमर ऑलवेज फील हैप्पी इन क्राउड। क्राउड में ना इन्वेस्टर हमेशा, अगर सारे लोग कर रहे हैं और वो कर रहा है ना, तो उसको लगेगा गलती होगी तो सबकी होगी। राइट। गलती होगी तो सबकी होगी और मैं उसमें से एक हूँ, और मैं तो बाकी की वजह से ये गलती कर रहा हूँ। राइट। तो शिप मेंटालिटी इसको बोलते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू establish this flow when you are showing the big picture, and it is very important. Pull back. Now this is very important. If you feel your customer are objecting and resisting sale enormously, you can step back a little and see what will happen next. क्लाइंट है ना बहुत सारे बहानेबाजी ज्यादा ही कर रहा है, इसमें दिखा रहा है, तो आप स्टेप बैक कीजिए। कैसे स्टेप बैक करें? एग्जांपल, नो वरी सर, आई हैव इनफ टाइम, सॉरी फॉर माई स्पेलिंग, आई हैव इनफ टाइम फॉर वेटिंग फॉर योर डिसीजन। मेरे पास बहुत टाइम है, आप आराम से डिसीजन लीजिए और मुझे बताइए। डू नॉट ट्राई टू पुश इट फर्दर। राइट। तो पुल बैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 16 चेक, इफ योर कस्टमर डू नॉट एक्सप्रेस एनी ऑब्जेक्शन दिस डजंट मीन ही डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। कभी कभी उसको कोई ऑब्जेक्शन, वो भी सुनता ही रहता है। डोंट अलाउ योर कस्टमर टू कीप हिडन ऑब्जेक्शन। उसके मन के जो ऑब्जेक्शन उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न। अगर वो कुछ नहीं बोले, सर आपको कोई आइडिया है, मतलब आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न यू कैन रेज इट, आप मुझे पूछ सकते हो, वी कैन ट्राई टू आंसर इट। राइट। तो बीच बीच में सवाल पूछते रहिए क्लाइंट को, ट्राई टू मेक हिम स्पीक आउट ओपनली। राइट। सो ऑलवेज पुट अ चेक, एक्सेप्ट। It is not profitable investing all your time efforts into dealing with sales objection of just one customer. कोई कस्टमर बस ऑब्जेक्शन ही दे रहा है और आप उसको टाइम और एफर्ट दिए ही जा रहे हो।
है ना, कहीं कहीं पे आपको एक्सेप्ट करना है कि ये डील क्लोज नहीं होगी, एक्सेप्ट इट एंड मूव टू द नेक्स्ट कस्टमर, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे चिपक मत जाओ, आपने सारा कोशिश कर लिया, अब ज्यादा एफर्ट और टाइम प्रॉफिटेबल नहीं है, यू डोंट नीड टू, वी कांट क्लोज एवरी डील, एक्सेप्ट इन एंड मूव इट टू द नेक्स्ट कस्टमर। हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करने वाले सिर्फ 50 से 60 हजार लोग हैं। तो यू कैन चूज द कस्टमर, ऑलवेज कीप इन माइंड कस्टमर वांट्स यू rather than you wants customer, always have that respect for ourselves, right? तो कुछ कुछ चीजें होती है वो नहीं क्लोज होती, मूव टू द नेक्स्ट कस्टमर, क्योंकि वो आपका दिमाग खराब कर सकती है, राइट, एंड इट कैन स्पॉइल द एंटायर डे। लर्न, जो डील क्लोज नहीं होती उसमें लर्निंग होती है, डोंट लेट देम गो विदाउट आस्किंग व्हाई दे डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्ट, है ना। अगर कोई मना कर दिया तो बस एक ही पूछो, सर आपने क्यों नहीं किया, उसका रीजन बताइए। लर्न फ्रॉम द सिचुएशन एज मच एज यू कैन एंड एडजस्ट योर टैक्टिक्स। कभी आपकी भी गलती होती है, राइट, कभी सामने वाले की भी गलती, तो वो जब बताया गया कि सर आपका कंपनी का ना मुझे अप्रोच पसंद नहीं आया, आप फोन बहुत ज्यादा किया मुझे, मैं परेशान हो गया, मेरी मीटिंग आपकी वजह से स्पॉइल हो गई, राइट, आपका डॉक्यूमेंट टाइम से नहीं आता, आप टाइम पे आते नहीं हो, आप अभी से आप टाइम पे नहीं आए तो आगे आप क्या करोगे, आप अभी तो मैंने आपको पैसा दिया नहीं और आप टाइम पे नहीं आए, दे देने के बाद तो आप क्या टाइम पे आओगे। नाउ व्हेन कस्टमर सीज दिस काइंड ऑफ थिंग, यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू, आपको उसको इम्प्रोवाइज करके नेक्स्ट टाइम में वो गलती नेक्स्ट कॉल में सुधारनी है, इसलिए ऑलवेज लर्न फ्रॉम अ फेल्ड कॉल, राइट। सो फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट लर्निंग फ्रॉम फेलियर इज फार मोर इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम फेलियर देन फेलियर इज pathetic, but if you are learning from failure it will help you to become a better salesperson, a better objection handler, right। तो दिस लाइन और कस्टमर का टाइप पहचानो। देखो दो टाइप के फाइनेंशियल कस्टमर होते हैं, एक होता है प्रिवेंशन ओरिएंटेड, 80% क्लाइंट होते हैं प्रिवेंशन ओरिएंटेड। वो क्या होता है प्रिवेंशन ओरिएंटेड, देखो ये ग्राफ है, ये एक्चुअल लॉस, ब्लू लाइन है एक्चुअल लॉस एंड गेन। जो प्रिवेंशन ओरिएंट क्लाइंट होते हैं उसको जो लॉस होता है वो एक्चुअल से डबल दिखता है और गेन होता है वो एक्चुअल से आधा दिखता है, मतलब में लॉस होने पे जो दुख होता है, राइट, वो एक्चुअल लॉस से कुछ ज्यादा ही दुख उसको लगता है, और प्रॉफिट होने पे उसको जो खुशी होती है वो एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा होता है, खुशी उसको कम होती है। मतलब में 10 रुपए के गेन को, 10 रुपए के लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए एक एवरेज इन्वेस्टर को 20 रुपए का गेन चाहिए, राइट। तो दर्द होता है ना 10 रुपए के लॉस से, उसका जो दर्द है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 20 रुपए का गेन चाहिए, राइट। इट इज साइकोलॉजी, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ओरिएंटेड क्लाइंट। इनको लॉस में दुख ज्यादा होता है, प्रॉफिट में खुशी कम होती है, राइट। और दूसरा होता है प्रमोशन ओरिएंटेड क्लाइंट। प्रमोशन ओरिएंटेड क्लाइंट क्या होते हैं, इनको लॉस में ना दुख कम होता है और गेन में दिन छोटा हो तो भी उस पर खुशी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे क्लाइंट बहुत कम होते हैं, दे आर वेरी इजी टू क्लिक। अ टिपिकल बिजनेसमैन इज अ प्रमोशन ओरिएंटेड क्लाइंट, अ सैलराइड पर्सन, अ टीचर, अ लाइब्रेरियन आर बेसिकली प्रिवेंशन ओरिएंटेड। बोले मेरा पैसा बढ़े नहीं तो कुछ नहीं, कम नहीं होना चाहिए, इनका ये होता है। और 80% क्लाइंट होते हैं वो प्रिवेंशन ओरिएंटेड होते हैं, इसको बोलते हैं लॉस एवर्जन, राइट। लॉस से उनको डर बहुत ज्यादा लगता है, लॉस एवर्जन होने क्या चाहिए, इन्वेस्टर रिस्क एवर्स होने चाहिए, बट एक्चुअली वो होते हैं लॉस एवर्स, राइट। जैसे कि ऑलवेज ट्राई टू एस्टैब्लिश अ सोशल नॉर्म्स विद द क्लाइंट। जो कि प्रमोशन फोकस क्लाइंट है और प्रिवेंशन फोकस क्लाइंट है, उनके साथ आपके सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स दोनों हो सकते हैं। मार्केट नॉर्म्स जैसे क्लाइंट नया हो तो उसके साथ आपका सोशल नॉर्म्स नहीं हो सकता। तो प्रमोशन फोकस क्लाइंट के साथ आपको क्या बात करनी, हाई रिस्क हाई रिटर्न की, राइट। और प्रिवेंशन फोकस क्लाइंट को आपको क्या बात करनी है, स्टेडी रिटर्न एंड लो रिस्क की। तो आपका ना इसमें स्टेडी रिटर्न आता जाएगा और इसमें रिस्क भी कम है, ये आपको बात करनी है। मगर ये क्लाइंट है ना आपका नया है, मगर पुराना क्लाइंट होगा तो सोशल नॉर्म्स होंगे आपके साथ, कुछ आपके रिलेशन होंगे, तो कभी कभी उसमें क्या होता है कि स्मॉल गेन में भी एक्सेप्टेड, छोटा गेन होगा वो उसको माफ कर देगा आपको, अगर आपके सोशल नॉर्म्स भी है तो। और प्रिवेंशन फोकस में अगर आपके सोशल नॉर्म्स है तो स्मॉल लॉस में भी फॉरगिवन, छोटा लॉस होगा तो वो आपको माफ कर देगा। इसलिए जब मार्केट नॉर्म्स काम नहीं करते तब सोशल नॉर्म्स काम आपको हेल्प, आपको एक कुशन देते, ज्यादा टाइम देते हैं, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू एस्टैब्लिश सोशल नॉर्म्स। एग्जांपल, प्रमोशन फोकस में आता है डायमंड मर्चेंट, प्रिवेंशन फोकस में आता है टीचर, ठीक है। उसको डायमंड मर्चेंट को ज्यादा रिटर्न चाहिए, रिस्क लेने के लिए वो तैयार है, उसको ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ। टीचर को आप सेफ प्रोडक्ट बताओ, मगर उसको ज्यादा रिटर्न नहीं मिला तो प्रमोशन फोकस को, डायमंड मर्चेंट को
तो वो आपको हटा देगा, टीचर को लॉस हुआ तो आपको हटा देगा, मगर ट्राई टू एस्टेब्लिश अ सोशल नॉर्म्स विद हिम सो दैट यू विल फेस लेस ऑब्जेक्शन। जैसे कि सॉरी, डाइमर मर्चेंट इज योर फ्रेंड, देन यू आर हैविंग अ सोशल नॉर्म्स, इट इज नाउ इजियर टू हैंडल। दोस्त है, छोटा गेन हुआ तो माफ कर देगा, हाँ चलो आएगा, रिलेट कर लेंगे। टीचर इज माई कजिन, देन यू आर हैविंग अ सोशल नॉर्म्स, तो थोड़ा लॉस होगा तो बोले थोड़ा वेट कर लेते, तू है ना, तो टेंशन नहीं है, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव दिस सोशल नॉर्म्स व्हेन यू आर डीलिंग विद द क्लाइंट। सो पहला ऑब्जेक्शन को प्रिवेंट कीजिए, प्रोडक्ट ऐसी करिए कि ऑब्जेक्शन आए ही नहीं। ज्यादातर मार्केट में ना लॉस का ऑब्जेक्शन बहुत आता है, रिटर्न कम मिला। अब बैलेंस एडवांटेज फंड जैसी प्रोडक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक है ना, ऑब्जेक्शन कम आएंगे, उसके मेंटेनेंस उसका कम है, तो ऑब्जेक्शन कम आएंगे तो आपको हैंडल कम करने हैं, राइट। एस्टैब्लिश सोशल नॉर्म्स, ट्राई टू सॉल्व द सोल्यूशन, ट्राई टू सेव द सोल्यूशन, सेल द सोल्यूशन, नॉट सॉल्व द सोल्यूशन, ट्राई टू सेल द सोल्यूशन रादर देन अ प्रोडक्ट। जब हम रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो हम पानी को ठंडा रखने के लिए या रात को बची हुई चीजें प्रिजर्व करने का एक सोल्यूशन खरीदते हैं, उसको फेंक ना देना पड़े, राइट। सो वी ऑलवेज बाय सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, राइट, वी डोंट बाय प्रोडक्ट। हम टेलीविजन चीजों को ठंडा रखने के लिए नहीं खरीद सकते, टेलीविजन वी बाय फॉर लीजर्स, राइट, लीजर्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए, अगर डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो ऑलवेज ट्राई टू सेल अ सोल्यूशन रादर देन अ प्रोडक्ट, डू कंसल्टेटिव सेलिंग, आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, राइट। सो ऑलवेज ट्राई टू आस्क मोर क्वेश्चन। अगर किसी को गिफ्ट खरीदना है और वो गोदरेज के शोरूम में जाता है और बोलता है मुझे सोफा दिखाओ, और उसको जो चाहे साइज का सोफा चाहिए उसके बजट में नहीं आ रहा, तो वो बोलेगा यार आपके पास वैरायटी नहीं है, तो वो चला जाएगा वहां से। मगर आप उसको बोलोगे सोफा क्यों खरीदना है, तो बोलेगा मेरी सिस्टर का एनिवर्सरी है तो मुझे उसको गिफ्ट देना है, और मेरा 40,000 का बजट है, राइट। अब उसको गिफ्ट देना है तो जरूरी नहीं वो सोफा ही दे, राइट। आपने दो चार सवाल पूछ लिए, अब क्या होगा कि आपको उसको पता चल गया कि आपको उसको गिफ्ट देना है, तो आप उसको एक वार्डरोब दिखा सकते हो, क्योंकि 40,000 में सोफा कैसा आएगा, मगर 40,000 में वार्डरोब बहुत अच्छा आएगा। उसको वार्डरोब दिखाओ, बोलो सर देखो ये एक मजबूत गोदरेज का वार्डरोब है, सोफा तो फिर भी टूट जाएगा 5-7 साल बाद, ये है ना पूरी जिंदगी वहां पे रहेगा, और आपके ससुराल, बहन के ससुराल वाले भी याद करेंगे भाई हो तो ऐसा हो, राइट। एंड यू कैन, जो बंदा सोफा खरीदने आया था वो एक वार्डरोब खरीद के जाता है, नाउ दैट इज कॉल्ड कंसल्टेटिव सेल, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द मेन आइडिया, प्रिवेंट देम, एस्टैब्लिश सोशल नॉर्म, ट्राई टू sell a solution and do consultative selling, right. So this is what is objection handling so far, and good luck with objection handling in the future. So that is what all I have to discuss. So I think I have taken enough time, almost 45 minutes, and if you have any query, doubt, I can try to answer them. Over to you, Pooja. Thank you, sir. That was a really nice session. And participants, if you have any question, please put it in a chat box. I So think I I guess, don't have any yeah, objection. yes, I think so, sir. So we'll wind up the session, sir. Sir, we have two questions from Sanjay Kumbarkar. Okay. Should you see in your chat box? Actually, this version of WebEx is new to me, so I am just Okay, searching okay. for I'll it. just read out Okay, the okay. question. I'm able to see them. Okay. How to sell a product which doesn't need customer, but we have a target. How to sell a product which doesn't need, which is not a customer need, but we have a target. ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है ना जिसके लिए कस्टमर नहीं है,
भारत देश में 130 करोड़ लोग हैं, यहाँ पे भंगार भी बिक जाता है, राइट? तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, आपका कस्टमर बेस छोटा है, ये समझ लीजिए। तो जनरली हमारे पास है ना 10-15 क्लाइंट होते हैं, हम वही क्लाइंट को जा जाके एक चीजें देते रहते हैं, और वो जब 15 एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सो यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कस्टमर। सो आई एम इनटू प्रोडक्ट, बट बिफोर प्रोडक्ट आई हैव डन 6-7 years ऑफ सेल्स। द ओनली थिंग वी आर हैविंग लेस प्रोस्पेक्ट। बाकी ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं जिसके लिए टारगेट कस्टमर नहीं हो सके। वी डोंट हैव दैट सेट ऑफ कस्टमर, सो ऑलवेज ट्राई टू, इफ यू वांट टू बिकम अ बेटर सेल्समैन, आपके क्लाइंट, आपके मोबाइल में 3000 नंबर होने चाहिए। सो दैट इज बेस्ट आई कैन गिव यू। अगर आपका टारगेट है हर एक प्रोडक्ट के लिए एक कस्टमर, आपको कस्टमर्स मिल ही जाते हैं, राइट? तो हिंदुस्तान है, उसमें भंगार भी बिकता है। हाउ शुड बी द फॉलो अप प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग अ कस्टमर? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो, आप कस्टमर से मिले पहले, उसके बाद सेवन सेवन टाइम इज द प्रिंसिपल, 7 बार आपको उसको फॉलो अप लेना है। कस्टमर को मिले, आपने समझाया, फिर 1 वीक बाद आपको फॉलो अप लेना है। सर आपसे मिले थे, सो कैन वी मीट अगेन इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी। जनरली 1, 2, 3 बार में ना, मोस्ट ऑफ द सेल्स पर्सन लीव देयर एफर्ट आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड ट्राई, और एक्चुअल डील 7वीं डील में क्लोज होती है। जो बंदा 7 बार फॉलो अप करता है विथ अ राइट अप्रोच, देर इज 80% चांसेस दैट यू कैन, आप 10 क्लाइंट को मिलते हो, 8 डील आपकी क्लोज होती है, राइट? सो हमेशा याद रखें, 7 टाइम इज द प्रिंसिपल। एक बात 7 बारी बोलते हो तभी जाके वो कस्टमर के दिमाग में चढ़ती है, राइट? और हम काफी टाइम ये सोचते हैं कस्टमर इरिटेट हो जाएगा, मगर कस्टमर अप्रिशिएट भी करता है अगर कोई फॉलो अप लेता है। तो काफी कस्टमर बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, मगर आप जब उसको कंटिन्यूसली फॉलो अप लेते हो तो उसको अच्छा भी लगता है। मगर ऑलवेज पहले 7 दिन बात कीजिए, फिर दूसरा फॉलो, पहला पहला फॉलो, सॉरी, 5 दिन बाद कीजिए, दूसरा 7 दिन बाद कीजिए, फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। ट्राई फॉर 2 to 2 months, तब तक 80% टाइम यू विल क्लोज द कस्टमर विथ एनी ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि जो आपने प्रपोज किए वही होगी सेल, राइट? कुछ और सेल हो जाएगा, राइट? और आपने सोचा था उससे ज्यादा सेल हो जाएगा। सो ऑलवेज फॉलो, मोस्ट ऑफ द सेल्स पीपल लीव देयर एफर्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायल, क्योंकि हमारा ईगो लेवल बहुत बड़ा होता है, हम किसी की ना नहीं सुन सकते, राइट? तो इफ यू आर इनटू सेल्स, डेवलप अ हैबिट ऑफ लिसनिंग टू नो, राइट? और वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना सुनना। तो ना सुनने से कभी डरिए मत, मगर 7 बारी फॉलो अप लीजिए। इट इज एक्चुअली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इट इज अ नॉर्मल सेल्स प्रोसेस दैट वी वन शुड फॉलो। So we have one more question. Okay. Most of the direct funds are available like Zerodha is selling or any other. Here I have no money now. Please contact me after some. How to handle the question that I have no money now? Please contact me after some time. तो जैसे ये सवाल पूछा, आपके पास एक डायरी होगी, सर सम टाइम मतलब मैं कितने टाइम, 1 महीने बाद करूँ आपको फ़ोन वापस, या 2 महीने बाद, राइट? तो उसने बोला कि हाँ, आप मुझे 2 महीने बाद कांटेक्ट कीजिए। तो आपकी डायरी में खोलिए, 2 महीने बाद का पेज निकालिए और वहां पे लिख दे कॉन्टेक्ट दिस पर्सन। और 2 महीने बाद जैसे ही वो डेट आए, आपका सुबह उसको फोन जाना चाहिए कि सर आपने बोला था, मैंने फोन किया, क्या हम मिल सकते हैं, राइट? बस, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, राइट? क्योंकि हमारे पास प्रोस्पेक्ट बहुत कम होते हैं। होता क्या है कि हमको अभी अगर उसने मना कर दिया, हमारे पास अब कोई है ही नहीं, या 8-10 लोग ही है जिससे आप फॉलो करते हैं। ऑलवेज यू शुड हैव अ लॉन्ड्री ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, राइट? और आप डायरी जितना अच्छा मेंटेन करोगे, आप जितने ऑर्गेनाइज हो गए, आपको हर एक डायरी के पेज पे 10 10 क्लाइंट मिलेंगे जिनको आपको मिलना है। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप इसको फॉलो करते जाओगे ना, आपकी हर एक डेट पे 7-8 अपॉइंटमेंट होगी। देन यू विल हैव अ मल्टीपल, आपका बहुत बड़ा क्लाइंट बेस होगा। फिर क्या होगा पता है, क्लाइंट आपको फोन करेंगे कि आज हमें मिलना था, आप आए क्यों नहीं? सो फॉर दैट यू हैव टू, आपको रगड़ना पड़ेगा 3 साल, 5 साल, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में रगड़ना पड़ेगा खुद को, है ना? बिना रगड़े कुछ चीजें सीखी नहीं जाती। सो दैट इज हाउ यू हैव टू हैंडल दिस क्वेश्चन।
Participants, if you have any questions, please put in the chat box. Chirag sir, I guess there is no more questions. Okay, fine. Can conclude the session. Thank you. Okay, so we have, Chirag sir, we have one questions. Okay. If client is proving wrong us at every step, then what to do? Like ये आप गलत बोल रहे हैं. Proving wrong us at every step. पहले तो वो सही में आपको गलत प्रूव कर रहे हैं या ही इज जस्ट टेलिंग इट विदाउट एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो जब ऐसा कुछ आए और क्लाइंट बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से आपको गलत प्रूव कर रहा है, दैट टाइम यू टू शो हिम हार्ड कोड डेटा. आपके पास डेटा प्रिपरेशन होनी चाहिए. सर देखो ये है फैक्ट, आप गूगल पे नेट पे भी चेक कर सकते हो एंड कंफर्म कर सकते हो. देयर इज नो हार्म इन इट. सो देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. इसमें आपको आपको फैक्ट जब आपको जहां पे डेनियल लगे वहां आपको डिनाई करना है कि सर आपके फैक्ट शायद नहीं है स्ट्रॉन्ग, दिस आर इज द फैक्ट और ये मेरे नहीं है, आप देखो गूगल पे देख सकते हो. दिस इज द केस. तो जैसे कि आपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखा ही और वो बोलते गलत है तो आप दिखा दो परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तो सीधी इंटरनेट पे दिखती है. अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो गूगल पे सारी चीजें ऑनलाइन है. सो until and unless if you are right you don't have to worry about all those things. और कुछ क्लाइंट जानबूझ के एक्सक्यूजेस कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट ही नहीं करना है, उसके पास पैसा ही नहीं है, राइट. इन दैट केस मैंने बोला ना एक्सक्यूजेस और ऑब्जेक्शन उसमें फर्क होता है. ये जो कुछ चीजें होती है ना वो एक्सक्यूजेस होते हैं, उसके पास एक्चुअली पैसा ही नहीं, रीजन कुछ और है. और and that's why he is giving unnecessary pain to you. In that case move to the next client, right. That is the best way. जरूरी नहीं है कि हर एक डील क्लोज हो सकती है. Okay, Pooja, I don't think there is further question, so we can now we can finally conclude. Okay, sir. Yeah. Thank you everyone for joining this session. So we'll wind up the session. So you may log off now. Thank you, everyone. Yeah. Thank you, Chirag sir.